ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آج پھر آپ کو انتظار ہوگا ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا، تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مین روڈ پر گاڑیوں کا بے ہنگم ہجوم تھا۔ دلاور خان پچھلی نشست پر قدرے پیچھے ہو کر بیٹھا ٹیبلٹ کی اسکرین پر کھلی فائل کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں چند لمحوں سے ایک ہی صفحے پر جمی تھی کہ اچانک غلام نے زور سے بریک لگا دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو دلاور نے ٹیبلٹ سے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ اس طرح گاڑی کیوں روکی؟ غلام نے سامنے دیکھتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، صاحب گاڑی کے آگے ایک لڑکی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں ان لڑکیوں کو سڑک پار کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے۔ دیکھتا ہوں کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، بلا وجہ مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، تمہیں دیکھ کر بلا وجہ چیخو پکار شروع کر دے گی، پھر تماشا بنے گا۔ اس سے پہلے ہی میں نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اترا تو چند قدم کے فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک لڑکی زمین پر بیٹھی دکھائی دی۔ دلاور تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور سخت لہجے میں بولا، اندھوں کی طرح سڑک پار کیوں کر رہی ہو؟ یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے۔ برج کس لیے بنائے گئے ہیں؟ تم جیسے لوگوں کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں، تاکہ ہم سکون سے گاڑی چلا سکیں۔ لڑکی نے جیسے ہی سر اٹھایا تو دلاور کے الفاظ وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے خوف سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نم آواز میں بولی، میں اندھی نہیں ہوں۔ دلاور نے بھویں سکیڑی، تو پھر سامنے سے آتی گاڑی نظر نہیں آئی؟ وہ فوراً بولی، گاڑی نظر آئی تھی، مگر اتنی تیز آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر آدمی کیا اڑ کر سڑک کے دوسری طرف پہنچ جائے؟ آپ اندھے ہیں، میں نہیں۔ دلاور ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ لڑکی نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی تیز گاڑی چلاتا کون ہے؟ اگر کوئی سڑک پار کر رہا ہو تو اسے کچل کر گزر جانا ہی ضروری ہے۔ آپ آرام سے بھی سفر کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اپنی بڑی گاڑی دیکھ کر شاید آپ کو لگتا ہے کہ سڑک پر باقی سب لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ دلاور نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ چہرہ معصوم تھا، مگر لہجے میں ایسی بے باکی تھی جس کی اسے عادت نہیں تھی۔ عموماً لوگ اس کے سامنے 2 جملے بولنے سے پہلے 10 بار سوچتے تھے، اور یہ لڑکی زخمی حالت میں بھی اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ لڑکی نے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے درد سے چہرہ سکیڑا۔ ویسے ہی میں اتنی پریشان ہوں، اور اوپر سے آپ نے آ کر مجھے ہی قصوروار بنا دیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑائی تو دلاور کا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا، مگر لڑکی نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا اور تلخی سے بولی، اللہ پوچھے گا آپ سے، اور آپ کی اس گاڑی سے بھی۔ اتنی زور سے چوٹ لگی ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا میں سیدھی کھڑی بھی ہوں یا نہیں۔ دلاور کے ہونٹ ہلے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، لڑکی نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بولی، اور آئندہ گاڑی تھوڑی آہستہ چلائیے گا، سڑک صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ دلاور وہیں کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد غلام اس کے قریب آ کر رک گیا۔ صاحب؟ دلاور نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ غلام نے دوبارہ پکارا، صاحب چوٹ زیادہ تو نہیں لگی اسے؟ دلاور نے نظریں اس راستے سے ہٹائیں جہاں لڑکی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی، اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا تو غلام نے جھجکتے ہوئے کہا، سر معذرت چاہتا ہوں، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ کو بھی پریشانی ہوئی۔ دلاور نے ٹیبلٹ دوبارہ ہاتھ میں لیا، مگر اس بار فائل کھولنے کی بجائے چند لمحے خالی اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اچانک بولا، غلام؟ جی سر، اس لڑکی کی معلومات چاہیے۔ غلام نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، کس لڑکی کی؟ وہی جو ابھی یہاں سے گئی ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اس کا نام، پتہ، وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی تھی، اور اتنی جلدی میں کیوں تھی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ غلام کچھ کہنے لگا تو دلاور نے بات کاٹ دی، اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اسے چوٹ کتنی لگی ہے۔ جی سر۔ غلام نے فوراً سر ہلایا، میں کوشش کرتا ہوں۔
दिलावर ने खिड़की से बाहर देखा। कोशिश नहीं गुलाम, 1 घंटे में मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए। गुलाम ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर दिलावर की निगाहें सड़क पर नहीं थी। वो उसी लड़की के आखिरी जुमले में उलझी हुई थी, सड़क सिर्फ आपके लिए नहीं है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। दिलावर खान अपने डार्क रूम में बैठा मेज पर फैली फाइलों में उलझा हुआ था। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट और संजीदा दिखाई दे रहा था। एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में सुलगता हुआ सिगार। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने नजरें उठाए बगैर कहा, अंदर आओ। दरवाज़ा खुला और गुलाम मोहतात कदमों से अंदर दाखिल हुआ। दिलावर ने एक नज़र घड़ी पर डाली, फिर उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। होश आ गया तुम्हें? गुलाम रुक गया। दिलावर ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक काम कहा था गुलाम, और तुम पूरा दिन लगाकर अब मेरे सामने खड़े हो। याद है मैंने क्या कहा था? गुलाम ने सर झुका लिया। जी सर, याद है। तो फिर? दिलावर की आवाज़ में सख्ती आ गई। मैंने कहा था 1 घंटे में मुझे उस लड़की की पूरी हिस्ट्री चाहिए। 1 घंटा? गुलाम, तुम्हें पूरा दिन क्यों लग गया? गुलाम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर माफ़ी चाहता हूँ, वाकई देर हो गई, लेकिन वजह भी है। दिलावर ने पूरी तवज्जो से उसे देखा। वजह सुनाओ। वो लड़की जिस इलाके में रहती है वो बहुत छोटा और दूर दराज सा इलाका है। वहाँ हमारे किसी आदमी का कोई राब्ता नहीं था। शुरू में मालूमात हासिल करना मुश्किल हो गया, इसलिए मुझे खुद वहाँ जाकर एक एक चीज़ की तस्दीक करनी पड़ी। अगर अंदाजे से कुछ बताता तो शायद आपको पसंद ना आता। दिलावर ने सिगार का कश लिया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। नाम? फरिश्ते इकबाल। दिलावर की उंगली सिगार पर ठहर गई। फरिश्ते? उसने नाम जैसे जहन में महफूज किया। आगे? गुलाम ने फौरन बताया। उम्र 20 साल है, एक मकामी अस्पताल में नर्स की हैसियत से काम करती है, पढ़ाई इंटर तक की है। दिलावर ने अब फाइल की तरफ देखने के बजाय गुलाम पर नजरें जमा दी। घर में कौन कौन है? सिर्फ वो और उसका बाप, माँ नहीं है, कोई बहन भाई भी नहीं। बाप क्या करता है? गुलाम के लहजे में कदरे हिचकिचाहट आई। सर, उसके बारे में एक बात है। दिलावर ने भवें उठाई। क्या? उसके बाप ने कुछ अरसा पहले जुए में 10 लाख रुपए हार दिए थे। दिलावर के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। 10 लाख? जी सर, और वो रकम उसकी अपनी नहीं थी, उधार ली गई थी। अब वो कर्ज वापस करने के लिए फरिश्ते बीबी दिन रात काम कर रही है। अस्पताल की ड्यूटी के बाद भी जो काम मिले कर लेती है। दिलावर खामोश रहा। गुलाम ने बात जारी रखी। जहाँ तक उसकी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक है, ना मंगनी हुई है ना शादी की कोई बात चल रही है। अस्पताल में उसके बारे में सबकी राय अच्छी है। बहुत नरम मिजाज और बाइखलाक लड़की है। मरीज भी उसे पसंद करते हैं और अमला भी। दिलावर ने सिगार की राख झाड़ी। और उसका बाप? वो पहले जैसा नहीं रहा सर। 10 लाख हारने के बाद जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। अब काम करता है, घर में रहता है और दोबारा जुए की तरफ नहीं गया। शायद बेटी की मेहनत देखकर शर्मिंदा हो गया है। दिलावर ने चंद लम्हे खामोश रहकर सिगार का कश लिया। घर का पता? वो भी मिल गया है सर। गुलाम ने जेब से कागज़ निकालकर मेज़ पर रख दिया। दिलावर ने कागज़ उठाया, उस पर लिखी हुई चंद सतरों को देखा, फिर अचानक उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। गुलाम उस मुस्कुराहट को देखकर समझ गया कि अब कोई फैसला हो चुका है। दिलावर ने कागज़ उंगलियों के दरमियान मोड़ते हुए कहा, 10 लाख रुपए का कर्ज है? जी सर। बस? गुलाम ने हैरत से उसे देखा। जी बस 10 लाख। दिलावर ने कुर्सी से उठते हुए सिगार का आखिरी कश लिया और बेनियाजी से कहा, गाड़ियाँ तैयार कराओ। गुलाम चौंका। सर, मैं उसका पूरा कर्ज अदा करूँगा। गुलाम के चेहरे पर हैरत उभरी, मगर दिलावर ने फौरन अगला जुमला कहकर उसे मज़ीद हैरान कर दिया। और उसके बदले फरिश्ते मेरे लिए काम करेगी। सर,
आप खुद। गुलाम ने हिम्मत करके बात शुरू की, मगर दिलावर की नज़र उस पर पड़ी तो वो रुक गया। दिलावर ने सर्द लहजे में पूछा, कोई मसला है? नहीं सर। गुलाम ने फौरन सर झुका लिया। वो कहना चाहता था कि दिलावर खान जैसे अरबपति शख्स को एक मामूली नर्स के घर जाने की ज़रूरत नहीं, वो भी ऐसे इलाके में जहां शायद लोग उसकी गाड़ी देखकर ही जमा हो जाएं। मगर गुलाम जानता था दिलावर के फैसले के बाद उसे सिर्फ जी साहब कहना आता था। गाड़ियां तैयार कराओ, दिलावर ने दोबारा हुक्म दिया। और हाँ, मुझे किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहिए। जी साहब। गुलाम पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से निकलते हुए उसने एक बार पीछे देखा। दिलावर अब भी हाथ में वही कागज़ लिए खड़ा था, जैसे उस पर लिखा हुआ एक मामूली सा पता उसके लिए किसी बहुत बड़े फैसले का आगाज़ बन चुका हो। गुलाम ने दिल ही दिल में सोचा कि वो चाहे भी तो उसे रोक नहीं सकता। दिलावर खान को मशवरा दिया जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद 3 गाड़ियां एक छोटे से इलाके की तंग गली में आकर एक बोसीदा से मकान के सामने रुकी तो आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां यके बाद दीगरे खुलने लगे। मोहल्ले के लोग हैरत से गाड़ियों को देख रहे थे। हर किसी के लिए यह समझना मुश्किल था कि इतनी महंगी गाड़ियां आखिर इस गली में किसके लिए घर आई हैं। दिलावर खान पहली गाड़ी से बाहर निकला तो उसके साथ ही गुलाम भी उतर आया। दिलावर ने एक नज़र मकान के झुके हुए दरवाजे, दीवारों पर उतरे हुए पलस्तर और छोटे से सहन पर डाली, फिर गुलाम को इशारा किया। गुलाम आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाज़ा खुला। सामने एक दुबला पतला सा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर उम्र से ज़्यादा परेशानी के आसार थे। उसने पहले गुलाम को देखा, फिर दिलावर को, और उसके बाद बेख्तियार गली में खड़ी गाड़ियों की तरफ देखा। जी, दिलावर ने निहायत संजीदगी से कहा। इकबाल साहब? जी मैं ही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपकी बेटी के हवाले से। अगर इजाज़त हो तो अंदर आ सकता हूँ। इकबाल साहब ने एक लम्हे के लिए मोहल्ले वालों की तरफ देखा, जो अब भी दूर खड़े सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद इस अचानक आने वाली मुसीबत को गली के बीच खड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन दरवाज़ा मज़ीद खोल दिया। जी, अंदर तशरीफ़ लाइए। दिलावर अंदर दाखिल हुआ तो गुलाम वहीं दरवाजे के बाहर रुक गया। दिलावर ने सहन पर एक सरसरी नज़र डाली और वहाँ पड़ी पुरानी चारपाई पर जाकर बैठ गया। इकबाल साहब उसके सामने खड़े रहे। दिलावर ने कुछ लम्हे खामोशी से घर का जायज़ा लिया, फिर नज़रें उन पर जमा दी। और बताइए, जुए के हाल अब कैसे हैं? इकबाल साहब के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हैं? दिलावर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने एक सवाल पूछा है इकबाल साहब, पहले उसका जवाब दे दीजिए। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर नज़र झुकाकर बोले, मैं अब जुआ नहीं खेलता, वो काम छोड़ दिया है। दिलावर ने सर हिलाया। और अब परचून की दुकान पर काम करता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। दिलावर के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अपनी बेटी को बुरा फंसाकर अब तुम्हें इंसान बनने का ख्याल आ गया? इकबाल साहब ने सर उठाया। दिलावर की आवाज़ में गुस्सा उतर आया था। कैसे आदमी हो तुम? एक ही बेटी है तुम्हारी, माँ इसकी दुनिया में नहीं, कोई बहन भाई नहीं, और तुमने इस बच्ची के सर पर 10 लाख का कर्ज रख दिया, उसे दिन रात काम करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें कभी उसका चेहरा देखकर शर्म नहीं आई? इकबाल साहब की आंखें नम हो गई। मुझसे गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैं वो गलती सुधार रहा हूँ। जितनी इस्तात है काम कर रहा हूँ, जल्द सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बेचैनी से पूछा, लेकिन आप हैं कौन और आपको ये सब कैसे मालूम? दिलावर चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर कदरे आगे झुककर बोला, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद करने आया हूँ। इकबाल साहब ने हैरत से उसे देखा। मदद? हाँ, तुम्हारे 10 लाख रुपए का कर्ज मैं अदा करूंगा। इकबाल साहब जैसे अपनी समात पर यकीन न कर सके। आप मेरा कर्ज अदा करेंगे? पूरा कर्ज, 1 रुपया भी तुम पर बाकी नहीं रहेगा।
लेकिन बदले में, दिलावर की नजरें सीधी उनके चेहरे पर थीं, बदले में तुम्हारी बेटी 12 घंटे मेरे लिए काम करेगी। इकबाल साहब के चेहरे पर फौरन तशवीश उभरी। मेरी बेटी? हाँ, उसे मेरे साथ काम करना होगा, उसके बदले में तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। दिलावर ने बेनियाजी से कहा। कहाँ है वो, उसे बुलाओ। इकबाल साहब ने फौरन जवाब दिया, वो अभी अस्पताल से नहीं आई। दिलावर ने घड़ी पर नजर डाली। कितनी देर लगेगी? पता नहीं सर, उसकी ड्यूटी कभी कभी देर तक होती है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। दिलावर ने सिर्फ सर हिला दिया। ठीक है। इकबाल साहब अंदर चले गए। दिलावर चारपाई पर तन्हा बैठा सामने की दीवार को देखता रहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों बैठा था। वो दिलावर खान था जिसके एक इशारे पर लोग दौड़ते थे, जिसके दफ्तर के बाहर मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार किया जाता था। वो किसी के लिए रुकने का आदी नहीं था, किसी का इंतज़ार करना तो दूर की बात थी। मगर आज वो एक मामूली से बोसीदा मकान की चारपाई पर बैठा एक ऐसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था जिसे वो अभी तक ठीक से जानता भी नहीं था। और अजीब बात यह थी कि उसे पहली मर्तबा इस इंतज़ार पर कोई एतराज़ भी नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद घर का दरवाज़ा खुला तो फरिश्ते ने थके हुए कदम अंदर रखे। अस्पताल की ड्यूटी ने उसके चेहरे से सारी ताजगी छीन ली थी। आंखों के नीचे हल्की सी थकन नुमाया थी और हाथ में पकड़ा बैग वो बेध्यानी से संभाले हुए थी। गली में खड़ी 3 बड़ी गाड़ियों पर उसकी नज़र पड़ी तो वो एक लम्हे को रुक गई। इतनी महंगी गाड़ियाँ उनके घर के बाहर क्यों खड़ी थी? दिल में अनजाने खदशे ने सर उठाया और वो जल्दी से सहन में दाखिल हुई तो अगले ही लम्हे उसके कदम वहीं रुक गए। चारपाई पर बैठा हुआ शख्स अब उठ चुका था। सुबह सड़क पर जिस आदमी से उसकी तल्ख कलामी हुई थी वही उसके घर में खड़ा था। फरिश्ते की आंखें हैरत से फैल गईं। दिलावर ने उसे देखा तो सीधा होकर खड़ा हो गया और कदरे तंजिया अंदाज में बोला, आखिरकार तशरीफ ले ही आई मोहतरमा। फरिश्ते ने बेयकीनी से उसे देखा। आप? दिलावर ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। जी मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको मालूम है मैं आमतौर पर किसी का इतनी देर इंतज़ार नहीं करता। फरिश्ते ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। आप यहाँ क्यों आए हैं और हैं कौन आप? दिलावर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। सुबह ही तो मुलाकात हुई थी, इतनी जल्दी भूल गईं? फरिश्ते ने फौरन जवाब दिया, मैं नहीं भूली जनाब। आपको भूलना शायद इतना आसान भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आप मेरे घर तक कैसे पहुंचे और आपको मेरा एड्रेस किसने दिया? दिलावर ने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले और बेनियाजी से बोला, मेरे जैसे आदमी के लिए किसी नर्स का पता मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। फरिश्ते ने उसे गौर से देखा। मेरे जैसी नर्स का? जी। वो एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ सुबह के झगड़े का हिसाब लेने नहीं आया। फरिश्ते ने कदरी हैरत से पूछा, फिर? आपके लिए एक नौकरी लेकर आया हूँ। नौकरी? और ऐसी नौकरी जिसकी पेशकश शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। फरिश्ते के चेहरे पर उलझन फैल गई। कैसी नौकरी? दिलावर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर साफ लहजे में बोला, मेरा नाम दिलावर खान है। मैं कारोबार करता हूँ और मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। फरिश्ते ने फौरन पूछा, पर्सनल असिस्टेंट? हाँ, ऐसा शख्स जो मेरे रोज़मर्रा के कामों को संभाल सके, मेरे शेड्यूल, खाने, कपड़ों और ज़रूरी मामलात का ख्याल रखे। मैं जहाँ मीटिंग के लिए जाऊँ मेरे साथ हो, जिस मुल्क में सफ़र करूँ मेरे साथ सफ़र करे। फरिश्ते की पेशानी पर बल पड़ गए। और बदले में? दिलावर ने सीधा जवाब दिया, अच्छी तनख्वाह। वो ज़रा रुका, फिर बोला, और तुम्हारे वालिद के सर पर जो 10 लाख रुपए का कर्ज है वो भी मैं आज ही अदा कर दूंगा। फरिश्ते का चेहरा यकदम बदल गया। आपको मेरे अब्बू के कर्ज का कैसे पता? ये सवाल अभी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हारी मुश्किल ख़त्म कर सकता हूँ। तुम जिस कर्जे को उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो वो एक दिन में ख़त्म हो सकता है। फरिश्ते ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर मोहतात लहजे में बोली, लेकिन इसके बदले
आप मुझसे क्या चाहेंगे? दिलावर ने उसके सवाल को समझते हुए कहा, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना। फरिश्ते ने फौरन सर हिलाया। अगर आपकी मुराद कोई गलत काम है तो मैं नहीं कर सकती। पर्सनल असिस्टेंट के नाम पर लोग अपना मतलब निकालते हैं। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन अपने असूल नहीं बेच सकती। दिलावर के चेहरे पर पहली बार संजीदगी के साथ कुछ और भी आया। हराम काम मुझे खुद नहीं पसंद। इतना पैसा होने के बावजूद मैंने आज तक किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, न किसी को अपने नाम का फ़ायदा उठाकर मजबूर किया। फरिश्ते खामोश रही। दिलावर ने कहा, तुम्हें ये पेशकश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुबह तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम अपनी इज्जत के मामले में समझौता नहीं करोगी। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए और तुम मुझे वैसे ही लगती हो। फरिश्ते की नज़रें झुक गई। वो फैसला करना चाहती थी, मगर सामने 10 लाख का कर्ज खड़ा था। वो कर्ज जिसने उसकी ज़िंदगी के हर दिन को बोझ बना रखा था। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से पूछा, आप वाकई मेरा कर्ज उतार देंगे? दिलावर ने बगैर किसी तरद्दुद के सर हिला दिया। हाँ, पूरे 10 लाख। और मुझे कोई गलत काम नहीं करना होगा? नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर जैसे दिल पर पत्थर रखकर बोली, ठीक है। दिलावर ने फौरन पूछा, नौकरी मंजूर? जी। कल सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना। उसने जेब से कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे घर का पता है। फरिश्ते ने कार्ड थाम लिया। दिलावर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर एक लम्हे के लिए मुड़कर उससे देखा। देर मत करना। जी। वो बाहर निकल गया। फरिश्ते वहीं कड़ी कार्ड को देखती रही। उस पर दर्ज नाम एक बार फिर उसकी निगाहों के सामने आया, दिलावर खान। उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि एक अजनबी शख्स उसके घर तक क्यों आया, उसका कर्ज क्यों उतारना चाहता था, और आखिर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में उसे इतनी दिलचस्पी क्यों थी। मगर एक बात तय थी, कल सुबह 8 बजे से उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत। क्या दिलावर खान फरिश्ते की ज़िंदगी में कोई रोशन नवीद लेकर आया था, या फिर वो फरिश्ते से कोई फ़ायदा उठाना चाहता था? क्या फरिश्ते दिलावर के लिए काम कर सकेगी? क्या वो दिलावर के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बनकर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर कर पाएगी? ये सब कुछ तो हमें अंजाम पर ही मालूम होगा कि फरिश्ते की कहानी का क्या अंजाम होता है। तो चलिए फिर बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। अगली सुबह सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह के वक्त फरिश्ते मुकर्ररा वक्त पर दिलावर खान के मेंशन पहुंच गई। बुलंदो बाला आहनी गेट के सामने उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। गुलाम पहले ही उसकी आने की इत्तला दे चुका था, इसलिए गेट खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गई। मेंशन की कुशादगी और शानो शौकत देखकर वो चंद लम्हों के लिए बेख्तियार रुक गई। फिर एक मुलाजमा उसे लाउंज में ले आई। आप यहाँ बैठे, साहब अभी आते हैं। फरिश्ते ने इस बात में सर हिलाया और सोफे पर बैठ गई। अभी उसे वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने बेख्तियार नजरें उठाईं तो दिलावर खान सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। स्याह सूट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर मामूल की संजीदगी और कदमों में वही एतमाद जो उसकी शख्सियत का हिस्सा था। फरिश्ते उसे देखकर फौरन खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। दिलावर ने चंद लम्हों के लिए उसे देखा। सुबह की हल्की रोशनी में उसका सादा सा लिबास, बंधे हुए बाल और मासूम चेहरा उसे एक लम्हे के लिए वहीं रोक गए। उसकी आंखों में एक ऐसी नरम सी चमक उभरी जिसे वो खुद भी समझ ना सका। अगले ही लम्हे उसने निगाह हटा ली। वालेकुम अस्सलाम। वो उसके करीब आकर बोला, मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फरिश्ते ने अपना बैग खोला। जी। दिलावर चलते चलते बोला, और अपने वालिद को बता देना कि कल तुम मेरे साथ दुबई जा रही हो। फरिश्ते वहीं रुक गई। दुबई? दिलावर ने कदम नहीं रोके। जी दुबई। वो तेज़ी से उसके पीछे आई। लेकिन मेरा पासपोर्ट तो अभी बना ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ?
दिलावर ने पलट कर उसे देखा। ये मेरा सर दर्द है कि तुम्हें वहां कैसे लेकर जाना है। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम मेरे साथ जा रही हो, बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फरिश्ते, उसकी आवाज़ में ऐसी कतियत थी कि वो खामोश हो गई। दिलावर बाहर की तरफ बढ़ गया और वो भी उसके साथ चलने लगी। चंद कदम बाद उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, एक बात पूछूं? पूछो। आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने अमीर हैं, फिर भी इतनी सुबह दफ्तर क्यों जाते हैं? दिलावर के कदम रुक गए। उसने आहिस्ता से रुख मोड़कर उसे देखा। तुम्हें यह अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे इलाके में बड़े लोग अमूमन देर से उठते हैं, काम दूसरों से करवाते हैं और खुद आराम करते हैं। दिलावर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो तुम्हें लगता है दौलत इंसान को सुस्त बना देती है? फरिश्ते ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, बस पूछ रही थी। दिलावर ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बोला, कामयाब इंसान वही होता है जो वक्त की कदर करना जानता हो। वक्त ज़ाया करने वाला चाहे जितनी दौलत जमा कर ले, असल में वो गरीब ही रहता है। मैं हर दिन को एक मकसद के साथ शुरू करता हूँ। वो दोबारा चलने लगा। और याद रखना, अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें इंतज़ार करना पड़े तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तुमने मेरा वक्त ज़ाया किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। फरिश्ते ने फौरन कहा, जी मैं ख्याल रखूंगी। दोनों गाड़ी तक पहुंचे और अगले ही लम्हे गाड़ी सड़क पर रवा हो गई। कुछ देर तक फरिश्ते खामोश बैठी रही, मगर उसके जहन में एक सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा था। आखिरकार वो खुद को रोक ना सकी। मैं कल से एक बात सोच रही हूँ। दिलावर ने फाइल से नजरें नहीं हटाई। क्या? आपने मुझे नौकरी क्यों दी? उसने अब की बार संजीदगी से पूछा। कल भी मैंने यही सवाल किया था, मगर तब आपने कहा था कि मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत काम नहीं करूँगी। दिलावर खामोश रहा। फरिश्ते ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लेकिन सिर्फ मेरी मासूमियत की वजह से आप मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह, मेरे वालिद का कर्ज और अपने साथ बैरूने मुल्क ले जाने जैसी सहूलतें नहीं दे सकते। इसके पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर है। दिलावर की उंगली फाइल के सफ़े पर रुक गई। उसने आहिस्ता से चेहरा मोड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वो चमक उभरी जो किसी राज को छुपा रही थी। फरिश्ते उस नज़र से बेखबर थी। दिलावर ने फौरन निगाह वापस फाइल पर जमा दी और सर्द लहजे में बोला, तुम बहुत ज़्यादा सवाल करती हो। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस। उसने इसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें जो बताया है वही हकीकत है। तुम्हें नौकरी तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी तबीयत की वजह से मिली है। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। फरिश्ते खामोश हो गए। दिलावर ने चंद लम्हे बाद कदरे नरम मगर दो टोक लहजे में कहा, और आइंदा कोई बात पूछने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो कि सामने वाला जवाब देना भी चाहता है या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। फरिश्ते ने फौरन नज़रें झुका ली। जी। दिलावर ने खिड़की से बाहर देखा, मगर उसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी। उसने ये नौकरी सिर्फ उसकी मासूमियत देखकर नहीं दी थी। वजह वो खुद भी जानता था, मगर अभी वो वजह उस लड़की को बताने का वक्त नहीं आया था। कुछ देर बाद फरिश्ते दिलावर खान के बिल्कुल सामने बैठी थी और बार बार अपनी नज़रें मेज़ पर रखे पानी के गिलास की तरफ ले जा रही थी। इतने शानदार रेस्टोरेंट में बैठना उसके लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। इर्द गिर्द के लोग, सजी हुई मेज़ें और खामोश वकार लिए चलते वेटर उसे अपने मामूल की दुनिया से बहुत दूर महसूस हो रहे थे। दिलावर अलबत्ता हमेशा की तरह पुरसकून था। वो अपनी घड़ी पर नज़र डालता, फिर सामने रखे मोबाइल की स्क्रीन देख लेता। 15 मिनट गुजर चुके थे। फरिश्ते आखिरकार खुद को रोक ना सकी। आप कह रहे थे ना कि आप किसी का इंतज़ार नहीं करते? दिलावर ने नज़रें उठाई। तो हमें यहाँ बैठे 15 मिनट हो गए हैं और आपका क्लाइंट अभी तक नहीं आया। दिलावर ने कदरे हैरत से उसे देखा। तुम्हें मालूम है एक असिस्टेंट का काम क्या होता है? फरिश्ते ने फौरन कहा, जी, बॉस के काम संभालना और अपने बॉस को ये यकीन दिलाना कि क्लाइंट बस आने ही वाला है।
اس لیے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ وہ کرسی سے ذرا پیچھے ہوا۔ لیکن تم تو مجھے ہی کلائنٹ کے خلاف کر رہی ہو، ایسے کام کرو گی تو کیسے چلے گا؟ فرشتے نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کسی کے خلاف نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں، باقی آپ کی مرضی، بیٹھے رہیں، مجھے کیا؟ دلاور نے اسے گھورا۔ تم ضرورت سے زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتی؟ فرشتے نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ میں؟ ہاں تم۔ تو پھر آپ نے مجھے نوکری کیوں دی؟ دلاور نے بھویں چڑھائیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو تو ایسی لڑکیاں نہیں پسند جو آپ کے بقول ضرورت سے زیادہ ایٹیٹیوڈ رکھتی ہوں؟ وہ ذرا آگے ہو کر بولی۔ ویسے میں آپ کے پاس نوکری مانگنے تو نہیں آئی تھی، آپ خود میرے گھر آئے تھے، خود نوکری کی پیشکش کی تھی اور خود میرے والد کا قرض اتارنے کی بات کی تھی، بھولیے مت۔ دلاور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا، مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور نمودار ہوئی۔ فرشتے نے اسے دیکھا تو اسے بھی حیرت ہوئی کہ آخر وہ مسکرا کیوں رہا ہے۔ کیا ہوا؟ دلاور نے فوراً سنجیدگی اوڑھ لی۔ کچھ نہیں۔ آپ ہنس رہے تھے؟ میں ہنس نہیں رہا تھا، میں نے دیکھا ہے۔ تو تمہاری نظر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ فرشتے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر دلاور کے دائیں جانب جا ٹھہری۔ چند گز کے فاصلے پر ایک شخص غیر معمولی انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیز کی ایک جھلک نے فرشتے کے دل کی دھڑکن روک دی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، دلاور سر، اپنا سر نیچے کریں۔ دلاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ نیچے؟ وہ آپ پر گولی چلائے گا۔ فرشتے کرسی سے اٹھ چکی تھی۔ دلاور کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا کہ وہ اس کی طرف جھپٹی۔ اسی لمحے گولی چلی اور ریسٹورنٹ میں ایک زوردار آواز گونجی۔ فرشتے کے جسم کو جھٹکا لگا، اس کے لبوں سے دبی ہوئی سسکی نکلی اور وہ دلاور کے سامنے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ فرشتے! دلاور کی آواز میں پہلی بار ایسا اضطراب تھا جو کسی نے شاید کبھی نہیں سنا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ریسٹورنٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ چیخ کر اپنی جگہوں سے اٹھے، کرسیاں پیچھے کھسکی اور دلاور کے سیکیورٹی گارڈ فوراً اس کے گرد حصار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سر ذرا نیچے ہو جائیں، ایک گارڈ چلایا، مگر دلاور کی نظریں صرف فرشتے پر تھیں۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ فرشتے آنکھیں کھولو۔ لڑکی نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ میں ٹھیک ہوں، چپ کرو۔ دلاور کی آواز سخت تھی مگر اس میں چھپی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ غلام بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ سر، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دلاور نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فرشتے کے بازو سے بہتے خون کو دیکھا۔ گولی اسے لگی ہے۔ سر، ہمیں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، آپ کی جان کو بھی یہاں خطرہ ہے۔ دلاور نے پہلی بار سر اٹھا کر غلام کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور خوف ایک ساتھ تھا۔ گاڑی تیار کرو۔ جی سر۔ دلاور نے بغیر کسی تردد کے فرشتے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بے حد ہلکی محسوس ہوئی، جیسے ابھی ذرا سا دباؤ اسے توڑ دے گا۔ دلاور سر، فرشتے نے مدھم آواز میں پکارا تو وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ کیا؟ آپ بچ گئے نا؟ دلاور ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس لڑکی کو اپنے زخم کی فکر سے زیادہ اس کی جان کی فکر تھی۔ اس نے جبڑا بھینچا اور اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے فرشتے۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ میری فکر کرنے کی اجازت میں نے تمہیں نہیں دی۔ غلام نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور دلاور فرشتے کو باہوں میں لیے گاڑی کی طرف لپکا۔ پہلی بار دلاور خان کے دل میں یہ احساس پوری شدت سے اترا تھا کہ چند لمحے پہلے جس لڑکی کو وہ صرف اپنی زندگی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے لایا تھا، اسے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے کوریڈور میں دلاور خان سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور نظریں مسلسل فرش پر ٹکی تھیں، اس شخص کے لیے جس کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج چند لمحوں کا انتظار بھی قیامت بن چکا تھا۔ اس نے زندگی میں دولت تو بے حساب کمائی تھی،
मगर किसी रिश्ते को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। मोहब्बत, चाहत, अपनायत जैसे लफ्ज़ उसके लिए हमेशा दूसरों की कहानियों का हिस्सा रहे थे। फिर फरिश्ते उसकी ज़िंदगी में आई थी, बिल्कुल एक रोशन ख्याल की तरह। पहली मुलाकात में उसकी बेबाकी ने इसे चौंकाया था, फिर उसकी मासूमियत ने दिल पर दस्तक दी थी। वो खुद नहीं जानता था कि कब इस लड़की की फ़िक्र उसे अपनी फ़िक्र से ज़्यादा अजीज़ हो गई। शायद इसीलिए उसने उसे अपने करीब रखने के लिए नौकरी का बहाना बनाया था। और अब वही लड़की उसके सामने ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दिलावर ने आंखें बंद की तो रेस्टोरेंट का मंजर फिर से जहन में उभरा। गोली की आवाज़, फरिश्ते का अचानक उसकी तरफ लपकना और फिर उसका ज़ख्मी होकर इसकी बाहों में गिर जाना। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, अगर इसे कुछ हो गया तो। आगे के अल्फाज उसके गले में अटक गए। उसने कभी खुदा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, मगर आज पहली बार उसके होंठ बेइख्तियार दुआ के लिए हिले। या अल्लाह, इसे कुछ ना हो। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। दिलावर ऐसे उठा जैसे किसी ने उसे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया हो। डॉक्टर ने उसे देखते इत्मीनान से कहा, मिस्टर दिलावर, आपकी पेशेंट की हालत अब काफ़ी बेहतर है। दिलावर ने बेकरारी से पूछा, वो ठीक है? जी, गोली बाजू को छूती हुई गुजरी है। हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, खून काफ़ी बहा था, इसी वजह से कमज़ोरी है, लेकिन ख़तरे की बात नहीं। दिलावर ने जैसे पहली बार सांस ली। डॉक्टर ने मज़ीद कहा, अलबत्ता उम्र कम होने और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से उसे काफ़ी शौक लगा है। इस वक्त होश में है, आप मिल सकते हैं, मगर दवा के असर की वजह से वो किसी भी वक्त दोबारा सो सकती हैं। ज़्यादा देर बात ना कीजिएगा। दिलावर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फ़ौरन कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी निगाह बिस्तर पर पड़ी। फरिश्ते सफ़ेद चादर के दरमियान खामोश लेटी थी, बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरा गैर मामूली हद तक जर्द दिखाई दे रहा था। दिलावर के कदम खुद ब खुद उसके करीब जाकर रुक गए। फरिश्ते, उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर नरम थी। लड़की ने आहिस्ता से पलकें उठाई और उसे देखते ही मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। आप? दिलावर ने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए पूछा, कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा? फरिश्ते ने अपने जख्मी बाजू की तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से बोली, मेरा बाजू ख़राब हो गया है। दिलावर ने चौंक कर उसे देखा। ख़राब? डॉक्टर ने कहा है ठीक है, लेकिन गोली लगी है ना? उसने मासूमियत से कहा, मैं डिफेक्टिव हो गई हूँ, अब मुझसे कौन शादी करेगा? दिलावर के चेहरे पर बेख्तियार हैरत आई। क्या? फरिश्ते ने जैसे वाकई बहुत बड़ा मसला बयान किया हो। आपको हंसी आ रही है? मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। एक बाजू पर पट्टी बंधी है, दूसरा भी कल को किसी ने देख लिया तो कहेगा लड़की ठीक नहीं। दिलावर ने सर थामने के अंदाज में आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे पहले तक जिस लड़की की जान के लिए उसका दिल कांप रहा था, वो अब अपने मुस्तकबिल की शादी की फिक्र में मुब्तला थी। उसने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल होश है, वो फौरन बोली, और वैसे भी सारी मुसीबत आपकी वजह से हुई है। दिलावर ने उसे देखा। मेरी वजह से? जी, आपने खुद कहा था ना कि आप किसी का इंतज़ार नहीं करते। फिर 15 मिनट वहाँ क्यों बैठे रहे? क्लाइंट का इंतज़ार कर लेते, लेकिन मुझे भी साथ बिठाकर मेरी ज़िंदगी बाजू ख़राब कर दिया ना। दिलावर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी ज़िंदगी का बाजू ख़राब कर दिया? जी, फरिश्ते ने संजीदगी से सर हिलाया। और अब अगर कोई मुझसे शादी करने को तैयार ना हुआ तो? दिलावर कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी संजीदगी उतर आई जिसका फरिश्ते को अंदाज़ा नहीं था। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ और बोला, मैं करूँगा तुमसे शादी। फरिश्ते खामोश हो गई। शायद दवा के असर ने उसके जहन को धुंधला दिया था। दिलावर ने उसका हाथ थामने की बजाय सिर्फ बिस्तर के किनारे पर अपनी उंगलियां रखीं और धीरे से कहा, एक दफ़ा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर निकाह कर लेते हैं। ना तुम्हें किसी और की ज़रूरत होगी, ना मुझे किसी और की।
फरिश्ते उसे देखती रही, जैसे अल्फाज समझने की कोशिश कर रही हो। आप सच कह रहे हैं? दिलावर ने पहली बार बगैर किसी गरूर के जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल सच। फरिश्ते की पलकें बोझल होने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके लबों पर ही रुक गए। दिलावर सर, आप बहुत अजीब हैं। दिलावर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। फरिश्ते ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर दवा का असर गालिब आ रहा था। चंद लम्हा बाद उसकी पलकें मुकम्मल तौर पर झुक गईं और वो गहरी नींद में चली गई। दिलावर देर तक उसे देखता रहा। उसने आहिस्ता से कुर्सी पीछे की और उसके चेहरे पर से नजरें ना हटाते हुए दिल ही दिल में कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा फरिश्ते। 2 दिन बाद फरिश्ते अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 2 दिन पहले ही घर वापस आई थी, मगर कमजोरी अभी तक जिस्म में बाकी थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए जाने क्या देख रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठाया तो दरवाजे पर दिलावर खान खड़ा था। उसके हाथ में खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता था। फरिश्ते ने फौरन मोबाइल एक तरफ रखा, दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और कदरे हैरत से बोली, आप? दिलावर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंदर आ सकता हूँ? जी आए। वो अंदर आया और उसके करीब आकर गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। फरिश्ते ने हैरत से फूलों को देखा, फिर उसे थामते हुए धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। दिलावर ने कुर्सी खींचकर बिस्तर के करीब बैठते पूछा, अब तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर हूँ। बाजू में थोड़ा दर्द है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरिश्ते ने खुद ही पूछ लिया, आपने पता किया कि हमला किसने किया था? दिलावर का चेहरा संजीदा हो गया। हाँ, पता चल गया है। कौन था? जिस क्लाइंट ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया था वही मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। मुझे वहाँ एक बहाने से बुलाया गया था। मकसद सिर्फ मुझे नुकसान पहुँचाना था। फरिश्ते ने अफसोस से उसे देखा। यानी मेरी वजह से नहीं? दिलावर ने फौरन उसकी बात काट दी। अपने आप को कसूरवार मत समझो। अगर तुम मुझे खबरदार ना करती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने बैठा ना होता। फरिश्ते कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है दिलावर साहब। बगैर किसी जान पहचान के आप मेरे घर आए, मेरे वालिद का 10 लाख का कर्ज उतारने का वादा किया, मुझे नौकरी दी, और फिर जब मुझे गोली लगी तो अस्पताल में भी आप ही मौजूद थे। 10 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि ये मेरे लिए कितना अहम है। दिलावर ने उसे गौर से देखा। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। फरिश्ते ने हैरत से पूछा, मैंने? हाँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें याद है अस्पताल में जब तुम दवा के असर में थी तो क्या कह रही थी? फरिश्ते के माथे पर बल पड़े। नहीं, मैंने क्या कहा था? दिलावर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम कह रही थी कि तुम्हारा बाजू खराब हो गया है, तुम डिफेक्टिव हो गई हो, अब तुमसे कौन शादी करेगा? फरिश्ते ने फौरन शर्मिंदा होकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओह, मैंने वाकई ये कहा था? जी, मैं यकीनन दवा के नशे में होंगी। दिलावर हंसने से खुद को ना रोक सका। हो सकता है। फरिश्ते ने घूर कर देखा। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आज मैं इसी बात का जवाब देने आया हूँ। उसके लहजे में अचानक संजीदगी उतर आई। फरिश्ते ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। दिलावर ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। फरिश्ते के हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता ज़रा सा ढीला पड़ गया। क्या? मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी पर्सनल असिस्टेंट नहीं, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। फरिश्ते के लब हिले, मगर आवाज़ ना निकली। दिलावर ने बात जारी रखी, तुम मेरी ज़िंदगी में जिस तरह आई हो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अगर मेरी बीवी बन जाओ तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर गम को अपने हिस्से में ले लूँगा। तुम्हें कभी अपने बाप के कर्ज, अपनी ज़िंदगी या अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। फरिश्ते ने धीरे से पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
دلاور نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ دکھائی دیتی تھی۔ تم نے میری جان بچائی ہے، وہ ذرا سا مسکرایا۔ اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں، اور کون جانے مستقبل میں بھی کبھی میری جان خطرے میں پڑ جائے، شاید تم مجھے دوبارہ بچا لو۔ فرشتے کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ آپ کو ہر بات میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، تم سے نکاح کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دونوں کے درمیان ایک مختصر سی خاموشی پھیل گئی۔ دلاور نے پہلی بار بے چینی سے پوچھا، تو بتاؤ فرشتے، کرو گی مجھ سے نکاح؟ فرشتے نے نظر جھکا لی۔ دل میں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور ایک عجیب سا اطمینان بھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو زندگی کے طوفانوں کے سامنے مضبوطی سے کھڑا رہ سکے، اور دلاور کے سامنے بیٹھ کر اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ شاید اسے ایسا ہی شخص مل گیا ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جی مجھے منظور ہے۔ دلاور کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ سچ؟ فرشتے نے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھولوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، پھر یہ پھول ضائع نہیں گئے۔ فرشتے پہلی بار کھل کر مسکرائی، جبکہ دلاور اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آج کیا ہے۔ ایک ہفتے بعد دلاور خان اور فرشتے کا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا۔ نہ کوئی شور، نہ دکھاوا، بس چند قریبی لوگ، اور ایک ایسا فیصلہ جس نے دونوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ نکاح کے بعد دلاور اسے اپنی مینشن لے آیا۔ کمرے میں اس کے نام کی خوبصورت سیٹ سجی ہوئی تھی، اور فرشتے دلہن بنی بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بازو کی پٹی اب کھل چکی تھی، زخم بھی کافی حد تک بھر گیا تھا، اگرچہ کمزوری ابھی باقی تھی۔ دروازہ کھلا تو فرشتے نے سر اٹھایا۔ دلاور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے پاس آیا، ٹرے میز پر رکھی اور خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فرشتے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب کافی بہتر ہوں۔ دلاور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بہتر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دو، تم نے آج کچھ نہیں کھایا؟ فرشتے نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تمہارے بابا نے، کہہ رہے تھے صبح سے تم نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھاؤ پھر دوا بھی لینی ہے۔ فرشتے نے فوراً منہ بنا لیا، مجھے دوا نہیں لینی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں پٹی بھی کھل گئی ہے۔ اس نے اپنا بازو دکھایا۔ دلاور نے اس کا ہاتھ نرمی سے نیچے کیا۔ باہر کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے، اندر کی کمزوری ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ خون کافی بہا تھا، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، لیکن دوا بہت کڑوی ہے۔ فرشتے، جی بحث مت کرو، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا کھا لوں گی، لیکن پہلے آپ میری ایک بات سنیں۔ دلاور نے چمچ اس کی طرف بڑھاتے کہا، ہاں کہو۔ فرشتے نے چمچ لینے کی بجائے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے سوال پوچھنے سے پہلے ہمت جمع کر رہی ہو۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ دلاور کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ سوال بالکل سیدھا ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ وہ والی محبت جو پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ دلاور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی تم خود کو ہیروئن سمجھ رہی ہو؟ فرشتے نے فوراً گردن اکڑائی۔ جی۔ اور مجھے ہیرو؟ دلاور ہنس پڑا۔ اچھا، تو آج کل تم مجھے ہیرو سمجھتی ہو؟ آپ میرے شوہر ہیں، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ شرارت سے بولی۔ اب بتائیں کہ آپ نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا؟ دلاور نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر سنجیدہ ہو کر سر ہلا دیا۔ سچ سننا چاہتی ہو؟ جی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار گاڑی کے سامنے دیکھا تھا تبھی کچھ بدل گیا تھا۔ فرشتے کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ دلاور کی آواز میں اب مذاق نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، نہ مجھے کسی کے ساتھ تعلق بنانے کی خواہش ہوئی، نہ میں نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ میری زندگی کام، ذمہ داریاں اور اپنی دنیا تک محدود رہی، لیکن تمہیں دیکھا تو دل نے پہلی بار ضد کی کہ یہ لڑکی میری زندگی میں ہونی چاہیے۔ فرشتے خاموشی سے سنتی رہی۔ اسی لیے تمہیں نوکری دی، اسی لیے تمہارے گھر گیا، اسی لیے تمہارا قرض اتارنے کا فیصلہ کیا،
शायद मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना मालूम था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है फरिश्ते। फरिश्ते के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब जब मेरे घर आए थे तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है। दिलावर ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें तभी पता चल गया था? जी, वो हंस दी। वरना इतना बड़ा अरबपति आदमी मेरे जैसे छोटे से घर में क्यों आता? 10 लाख का कर्ज क्यों उतारता और एक मामूली सी नर्स को अपने साथ दुबई ले जाने की तैयारी क्यों करता? दिलावर ने हंसते हुए सर झटका। तुम वाकई बहुत ज़्यादा सवाल करती हो और आप वाकई बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। फिर दिलावर ने आहिस्ता से पूछा, तो बताओ, तुम मेरी मोहब्बत कबूल करती हो? फरिश्ते ने बिना किसी झिझक के सर हिला दिया। जाहिर सी बात है। दिलावर खामोश रहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे शौहर हैं और सबसे बढ़कर आपने मेरी मोहब्बत को हलाल रिश्ता दिया है, फिर मैं आपको क्यों कबूल ना करती? दिलावर के चेहरे पर ऐसी खुशी फैली जिसे फरिश्ते ने शायद पहली बार देखा था। अगले ही लम्हे उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। फरिश्ते एक लम्हे को चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। बेशक किसी को नहीं मालूम होता शुरुआत कहाँ से हो रही है और इख्तिताम क्या है। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।